Good evening, friends. A warm welcome to all. This is CA Stuti Mahajan from CA Sansar. So, today my topic is new Form 26 ES, that is Annual Information Statement. Let's see the PPT. New Form 26 ES, Annual Information Statement. Introduction. Budget 2020 to 21 had introduced a new Section 285BB in the Income Tax Act to implement revised Form 26 AS. The revamped Form 26 AS will come into effect from June 1, the CBDT said. Apart from the TDS or TCS details, revised Form 26 AS shall now contain information relating to cesses specified financial transactions, payment of taxes, demand, refund, and pending completed proceedings. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 26 AS का जो न्यू वर्जन है वो डेट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 2020 से आएगा और जो 26 AS जो नया फॉर्म आएगा उसके अंदर TDS और TCS के डिटेल्स के अलावा और भी कई सारी डिटेल्स होंगी जो कि हम लोग अभी आगे शेयर करेंगे. Extract of newly inserted section 285BB of Income Tax Act 1961. तो जो नया इंसर्ट किया सेक्शन 285BB तो वो क्या बोलते हैं? लेट्स स्टडी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. After section 285BA of the Income Tax Act, the following section shall be inserted with effect from 1st day of June 2020, namely. वही उसने बोला कि 285BB जो सेक्शन है वो इंसर्ट किया गया है 1 जून 2020 से. 285BB सेक्शन अब है क्या? लेट्स स्टडी. The prescribed income tax authority or the person authorized by such authority shall upload in the registered account of the assessee an annual information statement in such form and manner within such time and along with such information which is in the possession of an income tax authority as may be prescribed. In short, वो क्या कहना चाहते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जो भी एसएससी की इंफॉर्मेशन है उसके पास वो एक प्रिस्क्राइब टाइम है जो आगे हम स्टडी करेंगे कितना टाइम है उसके पास जो भी अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन है वो आपके 26 ES का जो फॉर्म है उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन रजिस्टर्ड अकाउंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है रजिस्टर्ड अकाउंट, बट दैट मीन्स the electronic filing account registered by the assessee in designated portal, that is the web portal designated as such by the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority. In simple words, जो हम लोगों ने इनकम टैक्स की साइट पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया हुआ वो है. नोटिफिकेशन नंबर 30/2020. ये नोटिफिकेशन किसके लिए आई है? न्यू फॉर्म 26 AS के लिए और जिसके अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया. देखिए अब CBDT notifies new Form 26 AS Annual Information Statement pursuant to Finance Act 2020 and amendment inserts new Rule 114I to be effective from June 1st and omits Rule 31AB. इसके अंदर इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, जो एक नया रूल है 114I उसको इंसर्ट किया गया. लेट्स स्टडी द नोटिफिकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो हमारी नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर क्या कह रहे हैं और ये नोटिफिकेशन सबसे बड़ी बात कब रिलीज हुई है? 28 मई को. In exercise of the powers conferred by Section 285BB, read with Section 295 of the Income Tax Act 1961, the CBDT hereby makes the following rules further to amend the Income Tax Rules 1962, namely. तो कैसे अमेंडमेंट कैसे हुई है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. दीज रूल्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020. तो इसे हम क्या बोलेंगे? जिस रूल के थ्रू 114I सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया उसको हम क्या बोलेंगे? 11th अमेंडमेंट. दिस शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020. तो 1 जून 2020 से ये जो है कम इनटू इफेक्ट में आएंगे. In the Income Tax Rules 1962, Rule 31AB shall be omitted. 31AB को खत्म कर दिया गया. After Rule 114H, the following rule shall be inserted, namely. नया रूल कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? 114I, Annual Information Statement.
अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या है। The Principal Director General of Income Tax or the Director General of Income Tax or any person authorized by him shall, under Section 285BB of the Income Tax Act 1961, upload in the registered account of the assessee an annual information statement in form number 26ES containing the information specified in column 2 of the table below, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which the information is received by him. तो वो क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन के अंदर 3-4 वर्ड्स उसने बोले। वो क्या कहना चाह रहा है कि 285BB सेक्शन क्या कह रहा है कि जो 26ES के अंदर जो पहले इंफॉर्मेशन भरी जाती थी, उसके अलावा अब कौन सी अपलोड होगी, जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके पास एसएससी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो 3 मंथ्स, दैट मीन्स 90 डेज के अंदर उनको एसएससी के कोड के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे रिकॉर्ड करनी है। टेबल, ये टेबल हमें क्या बताएगा, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे हमें रिकॉर्ड करनी है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स एज यूजुअल, ये तो पहले भी रिकॉर्ड हो रही है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसने की है तो वो सारी की सारी आपके 26ES न्यू 26ES के अंदर रिकॉर्ड होगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर कोई उसने टैक्स पे किया है। रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, अगर कोई उसकी डिमांड निकलती या उसका रिफंड है। रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अगर उसकी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हैं। एंड रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, अगर कोई प्रोसीडिंग्स उसकी एसएससी की कंप्लीट हो गई हैं तो वो सब हमें न्यू फॉर्म 26ES के अंदर मिलेंगे। The board may also authorize the Principal Director General of Income Tax or the Director General of Income Tax or any person authorized by him to upload such information received from any officer, authority or body performing any function under any law, or the information received under an agreement referred to in section 90 or 90A of the Income Tax Act 1961, or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in the annual information statement. वही सेम वर्डिंग क्या कहना चाह रहा है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो एसएससी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको 90 डेज के अंदर अंदर न्यू फॉर्म 26ES के अंदर वो अपलोड करेंगे। थर्ड, the Principal Director General of Income Tax or the Director General of Income Tax shall specify the procedures, format and standards for the purposes of uploading of annual information statement referred to in Subrule 1. इस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट के अंदर हमने अपलोड करना है तो वो हमें सबरूल 1 के अंदर बताया गया। इसके लिए हम क्या देखते हैं, अब जो हमारा न्यू फॉर्म 26ES आएगा वो कैसे आएगा, उसके पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। ठीक है, लेट्स सी पार्ट ए में क्या क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर, एसएससी का जो भी फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर, पैन नंबर उसका, आधार नंबर, नेम ऑफ द एसएससी, हिज डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड हिज एड्रेस। और पार्ट बी के अंदर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, जो टीडीएस और टीसीएस है। रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो वाली होगी। रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हम लोगों ने टैक्सेस पे किए। रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, एनी डिमांड और रिफंड। रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है। रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, अगर हमारी कोई प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। और एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I, अगर उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे पार्ट बी के अंदर आ जाएगी। So with this, Form 26ES has now been revamped to an annual information statement, which apart from the TDS or TCS details shall now contain comprehensive information relating to specified financial transactions, payment of taxes, demand, refund, pending or complete proceedings undertaken by the taxpayer in a particular financial year that is to be mentioned in the income tax returns. तो हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो भी अपनी इंफॉर्मेशन हमें वहां पे डालनी पड़ती है वो सारे के सारे नए 26ES के अंदर हमें अब मिलेगी। Form 26ES is an annual consolidated tax statement that can be accessed from the income tax website by taxpayers using their PAN number. वैसे जैसे हम पहले PAN नंबर से लॉगिन करके वहां पे Form 26ES देखते हैं, वैसे अब न्यू Form 26ES भी वैसे ही हम लोग देख पाएंगे।
So this is all for today. Thank you. Till then, keep following CA Stuti Mahajan, CA Sansar.